लाखों इंसानों का कत्लेआम किया गया, बल्कि इस्लामाबाद में भी मुगला की पुरअमन रैली पर तशद्दुद किया गया और सैकड़ों मुगला को गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर रियासती तशद्दुद किया गया। हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। इमरान खान के सिंध में फौजी और सिविल ब्यूरोक्रेसी पर मुश्तमिल हुक्मरान तबका इस मुल्क को तबाही और बर्बादी की तरफ ले जा रहा है। आज इनके धमाके गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है, गद्दार है। और महंगाई और बेरोजगारी इस बात की निशानदेही है कि इस मुल्क को दुआरी के दाने पे ला के खड़ा कर दिया है। आज ये मीडिया खुशहाल हुआ है, इस मुल्क में माशी खुशहाली हुई है। हम ये समझते हैं कि आटे का बहरान, गैस का बहरान और ये भी तमाम है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, इक़्तिदार उनके हाथों में नहीं चला जाता, उस वक्त तक इस मुल्क के अंदर खुशहाली नहीं आ सकती। दोस्तों और साथियों, आज मैं आप लोग कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर तब्दीली है, इस मुल्क के अंदर यहाँ से थोड़ा रास्ता दे दें भाई। किधर से जाना है? पहले वो खुलवा दो ना, वो खुलवा दो, आने का जनाब जुबैर अहमद खान को दावत देता हूं कि वो आ जाए, अपने ख्यालात का इजहार करें। जुबैर खान। नेशनल, अब मैं जुबैर खान मेरे ख्याल में नहीं आए हैं, तो अब मैं नेशनल वर्कर पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर जनाब यूसुफ मस्ती खान को दावत देता हूं कि वो आ जाए, अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब यूसुफ मस्ती खान साहब, मेहरबानी। सदर जलसा जनाब महमूद खान अचकजई साहब, मशरकी साहब, अल-मशरकी साहब, स्टेज पे बैठे हुए मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के रहनुमा, पिंडाल में खड़े हुए हमारे भाइयों, तमाम हमारी माएँ, बहनें, बच्चे जो एक कसीर तादाद में यहाँ मौजूद हैं, ये इस बात की हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस ऐवान से परवेज मुशर्रफ को बेदखल नहीं करेंगे और अवाम की बालादस्ती कायम नहीं करेंगे। इसके लिए आप सबने हमारा साथ देना होगा। हमारे काफिले में मुख्तलिफुल ख्याल लोग हैं, लेकिन हम सब एक नुक्ता पर बिल्कुल ही मुत्तफिक हैं कि अमेरिका का रोल, फौज का रोल खत्म होना चाहिए, एजेंसीज का रोल खत्म होना चाहिए, अवाम का रोल शुरू होना चाहिए, लोगों का रोल शुरू होना चाहिए। जनरल परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 1999 को
معطل کر کے جس طرح زمام اقتدار پہ قبضہ کر لیا. میں تمام کارکنان سے ایپیڈیم کے ضرورت مند کارکنان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نظم و ضبط کا خیال رکھیں. پارٹی کے چیئرمین جناب ڈاکٹر قادر مدثر صاحب کارکنان سے اپیل ہے کہ سیکورٹی والوں کے ساتھ تعاون کرے اور آگے آنے کی کوشش نہ کرے, جلسے کو خراب نہ کرے, مہربانی کر کے اپنی جگہوں پہ بیٹھ جائے. جو ساتھی پارٹی ورکر جو آئے ہیں اداروں کا قبضہ ہے, انہوں نے ملٹری کیپٹل بنایا ہے, بیرونی سودے وہی کہتے ہیں, بڑے بڑے فوجی سودے ان کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں. اور آج ایپیڈیم جس طرح لندن کانفرنس ہوئی اور بعد اس کی چارٹر کو آپ دیکھ لیں, ہم نے یہ کہا ہے کہ فوج کا کام سرحد کی حفاظت کرنا ہے, فوج کا کام سیاست میں ملوث ہونا ہرگز نہیں, اور نہیں فوج کو اقتصادی بنیادوں پہ قبضہ کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے. اور الیکشن ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو, لیکن اس الیکشن کمیشن نے صدارتی انتخابات کے دوران ہی آئین کے آرٹیکل 63 سب سیکشن 2 کو خاموش کر کے جنرل پرویز مشرف کو راستہ دیا اور وہ صدر منتخب ہو گئے. اور اس طرح جنرل کو جب یقین ہو گیا کہ سپریم کورٹ اس کے فیور میں فیصلہ نہیں دے گی تو اس نے سپریم کورٹ کے ججوں کو بھی گھر بھیج دیا. اس وقت سپریم کورٹ مفلوج ہے. تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم الیکشن میں جائیں گے تو وہ مجھے بتائیں کہ ان کے پٹیشنز کہاں لگیں گے, کس ادارے میں لگیں گے. اس کے علاوہ جو نگران حکومت کی بات ہے, یہاں تو ایک من پسند حکومت ہے. یہ تو وہی پرانے جنرل پرویز مشرف کے حکومت کے باسی ہیں اور یہ ہماری ہیں. انہوں نے مسلم لیگ کاف سرکاری حمایت یافتہ آزاد امیدواروں اور تارے اختیارات سونپے گئے ہیں. میں انہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب صرف کراچی نہیں ہے اس ملک میں, اگر آپ رہتے ہو کراچی پاکستان نہیں ہے, اور بلوچستان بھی ہے, پختونخوا در خیبر کے جالے زندہ ہیں, اور وادی مہران کے اوشو سندھی بھی اس کی یادیں تازہ ہیں. تو یاد رکھا جائے دہشت گردی نہیں چل سکتی. ہم پالیٹکس میں دہشت گردی کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے. اور آپ نے دیکھا اکبر خان بگٹی, بالاج مری کو بھی شہید, ہمارے کئی شہید ہوئے ہیں. تو ایسے حالات میں انتخابات کا ہم نے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے. یہ آپ کی دلوں کی امنگ ہے اور اسے کامیاب کرنا آپ کی اولی اور تاریخی ذمہ داری ہے, کیونکہ ووٹ ایک قومی امانت ہے. اگر اس دفعہ آپ نے ووٹ کہیں بھی ڈالا تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے قومی امانت میں خیانت کیا. آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ. سیاست کی جو تقسیم ہے, آج سے ایک دوست بتا رہے تھے کہ الیکشن کا بائیکاٹ کیوں ضروری ہے. تحریک انصاف کے محترم زبیر خان صاحب جلسہ میں تشریف لے آئے. بڑا واقعہ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پاکستان کی تاریخ کا جو فیصلہ کن مرحلہ ہے نقطے پر متفق ہو گئے, منیمم پروگرام پہ متفق ہو گئے, اور انہوں نے اپنے عوام کی قیادت احسن طریقے سے کی. میں سمجھتا ہوں کہ مختلف جگہوں پر
जलसे करते हुए 22 जनवरी से शुरू हुए, लवारी ताप से लेकर बिल्कुल साहिल विक्रांत तक हर जगह पर, और आज कराची का ये बहुत बड़ा जलसा, इसके मकासद हैं, इसके मकासद अवामी मकासद हैं, इसके मकासद में कोई और गरज शामिल नहीं है। इसके बाद मैं तहरीक इंसाफ के सिंध के सदर दरख्वास्त करूंगा कि वो आए संसद से मुखातिब मोहतरम जुबैर खान साहब। जितने भी मेरे मोहतरम कैदी या स्टेज पे बैठे हैं, सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ जैसे लोग तशरीफ लाए, और खासकर ये आवाम को कि जो इतने खौफ के आलम में, जो कि पाकिस्तान में जो हालात हैं और खासकर कराची के, उसके बावजूद ये सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि APDM ने जो बाइकाट की पॉलिसी अख्तियार की है वो बिल्कुल सही थी। कि पिछली हुकूमतों ने इमरान खान साहब पे कराची में आज 2 महीने पे पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से हमने बताया क्या इमरान खान साहब पे ये पाबंदी लगनी चाहिए थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। और आज एक बात और वाज़ेह हो गई है कि सिंध हुकूमत जो बिल्कुल APDM का कोई जलसा बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज अगर ये नेशनल पार्क में जलसा होता तो अगर बाटा खान चौक पे लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन नेशनल पार्टी इजाजत ना देके एक तो APDM ने अपने अमन पसंद होने को तो रोक सकते, कभी नहीं रोक सकते, क्योंकि जो सच की ताकत है वो सच्ची रहती है। साबित हो गया कि आज गवर्नर जो है वो MPN का है। भरने वालों का एक निजाम अवाम पर मुसल्लत है, एक आमराना निजाम मुसल्लत है। और मैंने सुना है कि जज जेल में हूँ, वो भी सिटिंग जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के, वो जेल में हूँ। ये कैसा इलेक्शन है, कैसा फ्रॉड है। आप ये देखिए कि PCO के तहत जो इन्होंने ये सारा दोबारा मार्शल लगाया, ये मार्शल निजाम इस मुल्क की बर्बादी का जिम्मेदार है। अवाम बादशाह नहीं है, लोग बादशाह नहीं है। माकूल कौमें अपने वसाइल सहाय के लिए चीख रहे हैं, चीखो पुकार है। आपका साथ मांगने के लिए यहां कराची के शहर में आया है।
हमारी ख्वाहिश थी कि हम कराची के सेंटर पर निश्तर पार्क में जमा होकर सारी कराची के लोगों से मुखातिब हों और ये हक और सच का कलमा उनके कानों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें, मगर ये जनरल परवेज मुशर्रफ और उनके हवारी जिनको यहां कराची की हाकमियत दे दी गई है, उनका फरमान ये है कि वो लोगों को झूठ बताते रहे हैं, जबरदस्ती कानों में झूठ ठोंसते रहे हैं। इसके लिए उन्होंने ये सच लोगों के कानों तक पहुंचने से रोकने के लिए पाबंदी लगाई थी कि एपीडीएम लोगों तक न पहुंच सके। इमरान खान को एयरपोर्ट पे आते हुए रोका गया। एपीडीएम के और कायदीन को हैदराबाद से कराची के रास्ते तक धमकियां दी गई कि हम आपको कराची में जलसा करने नहीं देंगे। लेकिन ये एपीडीएम के कायदीन का हौसला और आप लोगों का शऊर और गैरत है कि आप इन इक़्तिदारी ऐवानों में बैठे हुए दहशतगर्दों को आपने बता दिया कि अगर मिस्टर पाक नहीं तो बाचा खान चौक पर भी हम हजारों लोग इकट्ठे होकर ये कलमा हक और कलमा सच कहेंगे। और ये आज हो रहा है। पाकिस्तान के 60 सालों में, पाकिस्तान के 60 साल कोई हम महकूम और मजलूम अवाम के लिए अच्छे साल नहीं रहे, लेकिन ये पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ के जो 8 साल हुए हैं, ये उन 60 सालों में बदतरीन साल हैं, बदतरीन हाकमियत के साल हैं। 60 सालों में हमसे कौमी आजादी छीनी गई, तशख़्ख़ुस छीनने की कोशिश की गई, हमारे घर, हमारे बच्चों के मुंह का निवाला छीनने की कोशिश की गई। लेकिन इन 8 सालों में इन्होंने कोशिश की है कि लोगों को खौफ में मुब्तला किया जाए। हर गली, हर चौक, हर चौराहे पे जो भी आदमी गुजरता है, हर वक्त खौफ में होता है कि कहीं बम न फट जाए, कहीं कोई किसी की गोली का निशाना न बन जाए, कोई अगवा करके गोश्त के टुकड़े करके बोरी में लाश बंद करके न भेज दे। इसी खौफ में ये मुल्क के सारे अवाम रहते हैं और इसने चंद कंपनियों को ये इख्तियार दे दिया है कि वो इंसानों के खून निचोड़कर उससे भी नफा कमाते रहे और इनका बस चले तो ये इंसान की हड्डियों की मिख निकालकर उसको भी बाजार में बेच दें। आज आटा नहीं मिलता, चीनी नहीं मिलती, बिजली नहीं, गैस नहीं, दाल नहीं मिलती। इस तरह का ये सारा निजाम इस पे मुसलत किया गया है इस मुल्क में। हम वो लोग हैं, हम कहते हैं जिन जिन लोगों ने तारीख से सीखा, अपनी गलतियों से सीखा, वो आज यहां इस कतार में खड़े हैं। और जिन लोगों ने अपनी तारीख से नहीं सीखा, वो एक तो सीधे सीधे मुशर्रफ के साथ हैं, दूसरे जो इलेक्शन मुशर्रफ के साथ नहीं है फिर भी उसकी इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। लगता है उन्होंने तारीख से नहीं सीखा। आपको पता है जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक शतरंज की बाजी लगाई हुई है। वो सारी दुनिया को, सारे लोगों को ये बताना चाहता है
की जारियत को, जबर को, रेजनी को, दहशतगर्दी को, लूट मार को आईनी और कानूनी हैसियत देने में इस्तेमाल होंगे। इसके लिए ये झूठे इलेक्शन है, फ्रॉड इलेक्शन है। 18 फरवरी को सारे बादली लोग पाकिस्तान के चारों सूबों में कहीं भी सियासी गवर्नर नहीं है, किसी पार्टी का नुमाइंदा, लेकिन कराची में आज भी एमक्यू का गवर्नर सिंध पे मुसलत है। हम कहना चाहते हैं कि इस गवर्नर को फारिग किया जाए। और ये जो असला है, ये असला सिर्फ इसलिए लाया गया है कि जब हम लोग जनरल परवेज मुशर्रफ को उतारने में कामयाब होंगे, जब जनरल परवेज मुशर्रफ इंशाअल्लाह ये अवाम की सैलाब में जल्दी फौजी हमले डूबेगी और जनरल परवेज मुशर्रफ को नवाब भुट्टी के कत्ल, बेनजीर भुट्टो की शहादत, बालाचमरी की शहादत, वाना वजीरिस्तान में बेगुनाह शहीद होने वाले, लाल मस्जिद में शहीद होने वाले बेगुनाह लोगों के कत्ल में अदालत के कटड़े में जवाबदार की हैसियत में खड़ा होना पड़ेगा। और जब कौम उसे अदालत के कटड़े में खड़ा करेगी तो ये दहशतगर्द बेगुनाह लोगों के खून से होली खेलने के लिए बाहर निकलेंगे। उस दिन से मैं आपको खबरदार करना चाहता हूं। मैं स्टेज पे बैठे हुए कायदीन महमूद खान चकजई, काजी हुसैन अहमद, हाई बलोच और सारे कायदीन से एतमाद लेते हुए ये बताना चाहता हूं दहशतगर्दों, हम करोड़ों लोग हैं, आप अकेले हैं। किस से लड़ोगे? बलोच से लड़ोगे, पश्तून से लड़ोगे, पंजाबी से लड़ोगे, उर्दू स्पीकिंग आम शहरी से लड़ोगे या सिंधियों से लड़ोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारी दहशतगर्दी डूब जाएगी। हम जिंदा रहेंगे, हमारे सीने, हमारे जज्बे हमेशा जिंदा रहेंगे। फतेह हमारी होगी, फतेह हमारी होगी। मैं आप सब दोस्तों का मशकूर हूं। मेहरबानी।